Hello, guys. Welcome back. This is the continuity of the previous lecture where we have covered LODR. We have been taking listing Indian Stock Exchange of CS paper 7 module 3, and we had completed till regulation number, I guess, 30. Yes, we have completed till regulation 30, and this lecture is a continuity of those LODR SEBI listing obligation LODR regulations 2015. Uh, we'll be continuing from regulation 31. Now, before continuing from regulation 31, shall we revise till like we can dodge on few regulations, like what was regulation 13? Grievance redressal mechanism. What was regulation 29? Prior intimation to the of board to stock exchange. Remember, 5 days, 2 days, 11 days, and those items. Yeah. What was regulation number? Say 5. Regulation 5. Yes, regulation 5 was general obligations of compliances. Regulation 7, share transfer agent. Regulation, say, 11, scheme of arrangement. Okay, now let's start, and today we'll try to finish off this chapter 13 of that is listing of Indian Stock Exchange. Fine. Regulation number 31, that is holding of specified securities and shareholding pattern. Now, submit to the stock exchange a statement showing holding of securities and shareholding pattern separately for each class of securities in the format specified by SEBI within the following timeline. 1 day prior to the listing of securities on the stock exchange, on quarterly basis within 21 days from the end of the each quarter, and within 10 days of any capital restructuring of listed entity resulting in a change exceeding 2% of the total paid up share capital. Now, there are different limits have been given within which you have to give the intimation. तो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपको ना स्टॉक एक्सचेंज को एक शेयर होल्डिंग स्टेटमेंट इशू करनी है. ठीक है, अब ये शेयर होल्डिंग स्टेटमेंट ना अलग चीज़ों के लिए अलग अलग दी गई है. जैसे अगर आप ना लिस्टिंग करा रहे हो कोई सिक्योरिटी की स्टॉक एक्सचेंज में, तो एक दिन पहले दे दो. ऐसे ये जो स्टेटमेंट आपका शेयर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है स्टेटमेंट का, हाँ, हर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए देनी है आपको. किसको देनी है? स्टॉक एक्सचेंज को देनी है. किस फॉर्मेट में देनी है? जो सेबी ने प्रिस्क्राइब की है. कब तक देनी है? वो यहाँ पे ये जो 3 गाइडलाइन दी हुई है टाइमिंग की, ये इस टाइमलाइन की गाइडलाइंस के हिसाब से देनी है. अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देते हैं स्टेटमेंट, तो विद इन 21 डेज, हर क्वार्टर के एंड के 21 डेज के अंदर अंदर देनी है. हाँ, पर अगर आप कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है लिस्टेड एंटिटी में कहीं कोई भी चीज़ की, और ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग के कारण कोई भी चेंजेस आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट 2% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा पड़ रहा है, तो विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को अपना ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का स्टेटमेंट देना है. Now, shall ensure that 100% of shareholding of promoters and promoters group is in dematerialized form and the same is maintained on a continuous basis. आपको इंश्योर करना है कि जो आपकी शेयर होल्डिंग है वो 100%. अब तो देखो, फिजिकल फॉर्मेट का कोई इतना रेलिवेंस नहीं रह गया है, तो जो भी आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज़ है, शेयर होल्डिंग्स है, वो सारी डीमटीरियलाइज फॉर्म में हो, ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है ना, और ये चीज़ आप कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखें. Now, the listed entity shall comply with circulars or directions issued by SEBI from time to time with respect to maintenance of shareholdings in dematerialized form. फिर SEBI समय समय पे जो भी गाइडलाइंस इशू कर रहा है, सर्कुलर इशू कर रहा है, आप उसको भी ध्यान में रखते रहें, उसको भी फॉलो करें. All entities falling under promoters or promoters group shall be disclosed
shall be disclosed separately in the shareholding patterns appearing on the website of all stock exchange having nationwide trading terminal. अगर कोई भी एंटिटीज़ हैं जिनका प्रमोटर्स और प्रमोटर्स ग्रुप्स की जो भी शेयर होल्डिंग है उसको आपको ना सेपरेटली इशू करना है, सेपरेटली बताना है, वेबसाइट्स में इशू करना है, ठीक है ना। फिर ये था हमारा 31 रेगुलेशन 31 होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। नाउ नेक्स्ट इज रेगुलेशन 31A। नाउ कंडीशंस फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन एज प्रमोटर्स और पब्लिक। तो अगर आप किसी को सपोज एक नॉर्मल को प्रमोटर को पब्लिक में क्लासीफाई कर रहे हो या पब्लिक को प्रमोटर में क्लासीफाई कर रहे हो तो क्या कंडीशन एक्सक्यूज मी, क्या कंडीशंस आपको देखना है इस चीज़ के क्लासिफिकेशन में। तो रेगुलेशन 31A सबसेक्शन 2, रिक्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ एनी पर्सन एज प्रमोटर और पब्लिक शैल बी परमिटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज ओनली upon receipt of an application from the listed entity along with relevant documents। अगर आप किसी भी पर्सन को प्रमोटर बनाना चाह रहे हो या उसे एक नॉन पब्लिक की कैटेगरी में घोषित कर रहे हो तो तब मानेगा स्टॉक एक्सचेंज जब वो एक एप्लीकेशन ले लेगा किससे, लिस्टेड एंटिटी से। इन केस एंटिटी लिस्टेड ऑन मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज शैल जॉइंटली डिसाइड ऑन द एप्लीकेशन। अब हर एक को अलग अलग से एप्लीकेशन जा के नहीं देंगे, वो जॉइंटली एक एप्लीकेशन देके फिर वो जॉइंटली डिसाइड करेंगे कि उसको प्रमोटर एज प्रमोटर क्लासीफाई करना है या नहीं करना है। नाउ रेगुलेशन 31A सबसेक्शन 3 सब रेगुलेशन 3, reclassification of status of promoter of person belonging to promoters group to public। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्रमोटर पर्सन था जो प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग कर रहा है अब हम उसको पब्लिक में रिक्लासीफाई कर रहे हैं। शैल बी परमिटेड ओनली अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ 2 कंडीशन। यानी पब्लिक को प्रमोटर बनाना है तो कंपनी का यानी लिस्टेड एंटिटी का एप्लीकेशन मात्र काफ़ी है, बट अगर आपको प्रमोटर को पब्लिक में क्लासीफाई करना है तो फिर ये 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। फर्स्ट, एन एप्लीकेशन फॉर रिक्लासिफिकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज has been made by the listed entity later than 30 days from the date of approval by the shareholders in the general meeting। जो भी ये जो रिक्लासिफिकेशन आपको करना है ना, इसका जो एप्लीकेशन है इसका जो एप्लीकेशन है वो आप दे चुके होने चाहिए 30 डेज़ यानी 30 दिन से ज़्यादा डिले नहीं करना। हाँ, इसका एप्लीकेशन आपको 30 डेज़ के अंदर देना है कि और ये एप्लीकेशन कहाँ होगा, अप्रूवल बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग के लिए देना पड़ेगा आपको इसको, ये एप्लीकेशन को। द प्रमोटर्स सीकिंग रिक्लासिफिकेशन शैल मेक अ रिक्वेस्ट फॉर रिक्लासिफिकेशन टू द लिस्टेड एंटिटी विच शैल इंक्लूड द रैशनल फॉर सीकिंग ऑफ सच रिक्लासिफिकेशन एंड हाउ the condition specified in clause B below are satisfied। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं जो प्रमोटर चाहते हैं कि हमको पब्लिक में क्लासीफाई कर दिया जाए उन्हें किनको देना है, उन्हें जाके देना है एक एप्लीकेशन, किसको, एंटिटी को, लिस्टेड एंटिटी को कि भाई हमको प्रमोटर्स के ग्रुप से हटा दो, हमको पब्लिक में क्लासीफाई कर दो। तो ये जब वो लिस्टेड एंटिटी को देंगे तब लिस्टेड एंटिटी से 30 डेज़ के अंदर अप्रूवल फॉर शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग के लिए पुट ऑन करेगा। पर इसके लिए कंडीशन बी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। नीचे जो कंडीशन बी है हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल एनालाइज द रिक्वेस्ट एंड प्लेस the same before the shareholders in general meeting for approval along with the views of the board of directors on the request। फिर जब आपने एंटिटी को दिया तो एंटिटी बोर्ड के सामने पुट ऑन करेगी जनरल मीटिंग में जब पुट ऑन करेगी तो अपने व्यूज़ देंगे उसमें डायरेक्टर्स। हाउएवर देयर शैल बी अ टाइम गैप ऑफ एटलीस्ट 3 months but not exceeding 6 months between the date of board meeting and the shareholders meeting considering the request of the promoters seeking the reclassification। Now आपने बोर्ड को दिया, फिर बोर्ड के बाद फिर शेयर होल्डर्स मीटिंग होएगी, ठीक है। एक बोर्ड मीटिंग होती है, पहले आपने बोर्ड मीटिंग में दिया तो वहाँ पे कंसिडर हुआ, उसके बाद आपको शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए देना है कि शेयर होल्डर्स अप्रूवल दें। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो टाइम गैप है ना बोर्ड मीटिंग से शेयर होल्डर्स मीटिंग के बीच में, तो 3 महीने का गैप तो होना ही चाहिए, ठीक है, बट 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए ये गैप। नाउ the request of promoters seeking reclassification shall be approved in general meeting by an ordinary resolution in which
the promoters seeking reclassification and person relating to the promoters seeking reclassification shall not vote to approve such reclassification request. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट की ना प्रमोटर ने कि हमको रिक्लासीफाई कर दो, ठीक है, उसका अप्रूवल हो गया जनरल मीटिंग में. कैसे होगा उसका अप्रूवल? वो जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास हो जाएगा, ठीक है. अब फिर अ पर्सन रिलेटेड टू द प्रमोटर सीकिंग रिक्लासिफिकेशन शैल नॉट वोट और टू अप्रूव. पर जो बंदा भाई खुद ही तुम बोल रहे हो कि मुझे प्रमोटर ग्रुप से हटाना है, उसके बाद तुम वहाँ जनरल मीटिंग में बैठ के वोट नहीं कर सकते ना उस पर, तो उधर पे नॉट शैल नॉट सीकिंग रिक्लासिफिकेशन शैल नॉट वोट टू अप्रूव सच रिक्लासिफिकेशन. तो उसके अप्रूवल में खुद जाके मत वोट करने बैठ जाना. ना सेकेंड कंडीशन जहाँ वो बोला था पहली कंडीशन में कि अगर आप ये करने के लिए, क्या करने के लिए, रिक्लासीफाई होना है, अगर आपको रैशनल होना चाहिए, और रैशनल बनने के लिए आपको बी पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा. बी पॉइंट क्या बोल रहा है? द प्रमोटर सीकिंग रिक्लासिफिकेशन एंड पर्सन रिलेटेड टू द प्रमोटर सीकिंग रिक्लासिफिकेशन शैल नॉट टुगेदर होल्ड मोर देन 10% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट. यानी ये वाला जो बी पॉइंट है ना, ये उनकी एलिजिबिलिटी बता रहा है, यानी कौन से वो प्रमोटर्स हैं जो अपने आप को रिक्लासीफाई कराने के लिए जा सकते हैं, तो उनके लिए, या फिर उनसे रिलेटेड पर्सन रिलेटेड टू प्रमोटर्स जो अपने आप को रिक्लासीफाई कराने जा सकते हैं एज जनरल पर्सन, उनके लिए कंडीशंस है. पहली कंडीशन कि टुगेदर वो पर्सन या फिर उसके साथ का जो रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड जो प्रमोटर्स हैं, वो टुगेदर 10% से ज़्यादा तो वोटिंग राइट्स नहीं होल्ड करने चाहिए उस एंटिटी में. नेक्स्ट, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, ये पढ़िएगा बार बार, शैल नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर. तो जो लिस्टेड एंटिटी है उसमें ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली कंट्रोल रखना चाहिए, उनका होना नहीं, उनका कंट्रोल नहीं होना चाहिए. फिर शैल नॉट हैव एनी स्पेशल राइट विथ रिस्पेक्ट टू द लिस्टेड एंटिटी थ्रू फॉर्मल और इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग थ्रू एनी शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट. फिर कोई स्पेशल राइट नहीं होना चाहिए आपका उस लिस्टेड एंटिटी में. कैसे? अगर सपोज मैं किसी और एंटिटी में हूँ और उस एंटिटी का इस एंटिटी के साथ मर्जर होता है, हाँ, तो किसी और एंटिटी की मैं प्रमोटर हूँ और इस एंटिटी में भी उसका मर्जर होता है, तो ये जो है ये कॉन्फ्लिक्शंस आ जाएंगे, आपका स्पेशल राइट्स क्रिएट हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है. फिर इसके बाद यहाँ पे बोला है shall not be represented on the board of directors, हाँ, including not having a nominee director of the listed entity. आप ना रिप्रेजेंट नहीं करना कहीं पे भी कि अपने आप को बता रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बता के, तो ये कभी भी वापस नहीं आ सकते आपकी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनना चाहता हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते. फिर एक्ट एज अ की मैनेजरियल पर्सन इन द लिस्टेड एंटिटी, तो कहीं पे भी वो की मैनेजरियल पर्सन की तरह भी नहीं एक्ट करना चाहिए इस एंटिटी में. फिर विलफुल डिफ़ॉल्टर ना हो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के द्वारा. फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ना हो. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर यानी कि जैसे हिंदी टर्म है, नॉट अ गुड टर्म, बट ये अगर जैसे नीरव मोदी जैसे लोग जो अब भाग गए हैं इस सिचुएशन से, तो आई शुड नॉट से बट येस, जिसे भगोड़ा बोलते हैं, जो भाग गया है कहीं पैसा लेके, यानी पैसा लेके भाग जाना, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है. इकोनॉमी का पैसा लेके यानी लोगों का पैसा लेके भाग गया, तो वो एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए. फिर द लिस्टेड एंटिटी शैल, अब ये होना चाहिए, ठीक है. अब क्या करना है लिस्टेड एंटिटी को? बी compliant with the requirements of for minimum public shareholding. वो जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, 25% शेयर होल्डिंग होना चाहिए, उस चीज़ का कंप्लायंस करो आप. not have trading in shares suspended by the stock exchange. देखिए उनके पास, उनने ना उस चीज़ पे ट्रेड नहीं किया, उन सिक्योरिटीज़ पे ट्रेड नहीं करना, उस सिक्योरिटीज़ में ट्रेड नहीं करना उस एंटिटी को, लिस्टेड एंटिटी को जो सेबी या स्टॉक एक्सचेंज ने सस्पेंड कर दी गई है. नॉट हैव एनी आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू सेबी द स्टॉक एक्सचेंज और द डिपॉजिटरीज. उसका कोई भी आउटस्टैंडिंग लेन देन नहीं बचनी चाहिए कि सेबी के साथ या स्टॉक एक्सचेंज के साथ या डिपॉजिटरीज के साथ कोई भी लेन देन नहीं हो. फिर रेगुलेशन 31(4) subsection 4, the promoter seeking reclassification subsequent to reclassification as public shall
कंप्लाई विद द फॉलोइंग। अब देखो इतनी आसानी से छोड़ा भी नहीं है। हाँ, पहली बात तो प्रमोटर को पब्लिक में इतनी आसानी से क्लासीफाई होने नहीं दिया, जहाँ पे इसको 31A सबसेक्शन 3 में 31A सबसेक्शन 3 में सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़े। उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत बच जाता तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ अभी भी पूरी करनी पड़ेगी उसे, किस में, रेगुलेशन 31A सबसेक्शन 4 के रेगुलेशंस के कंप्लायंस में। नाउ द प्रमोटर सीकिंग reclassification subsequent to reclassification as public shall comply with the following conditions. He shall continue to comply with conditions mentioned in subclause 1, 2 and 3 of clause B as specified above at all times from the day of such reclassification, failing which he shall automatically be reclassified as promoter person belonging to promoters group as applicable. देखो यहाँ पे तो एकदम ही उनने क्या बोलते हैं ना, हिट एंड बाउंस वाला कंडीशन डाल दिया है। ठीक है, अब आपको ने ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। जो प्रमोटर पब्लिक बन गया है, तो अब पब्लिक बनने के बाद ही शैल कंटिन्यू टू कंप्लाई, जो भी कंडीशन मेंशन की गई थी सब क्लॉज बी में, हाँ, जो भी अपन ने ये पढ़ा ना एलिजिबिलिटी कंडीशन के नाम पे, ये चीज़ें कि 10% से ज़्यादा वोटिंग नहीं रहना चाहिए, कंट्रोल नहीं रखना चाहिए, फिर स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए, रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए डायरेक्टर की तरह, की मैनेजरियल पर्सन नहीं होना चाहिए, विलफुल ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस है ना, इनका कंप्लायंस होना ही चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए इसका कंप्लायंस। कब? एट ऑल टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिक्लासिफिकेशन, हमेशा जब से रिक्लासीफाई हो गए ना तब से। अगर फेलिंग विच, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑटोमेटिकली प्रमोटर वापस से बन जाएंगे। ठीक है ना, अब जहाँ इस चीज़ के ब्रीच में आए तो फिर से आप वापस प्रमोटर के ग्रुप में आ जाओगे। सेकेंड कंडीशन क्या? ही शैल कंप्लाई विद द कंडीशंस मेंशन्ड इन सब clause 4 and 5 of clause B for a period not less than 3 years. Okay, now be precise, like हमने अभी ऊपर जो conditions पढ़ी उसमें से जो 1, 2, 3 है, इनका वायलेशन तो आप कभी नहीं कर सकते, यानी इस कैटेगरी में तो आप कभी भी नहीं आ सकते, और जब आए तो वापस आपको प्रमोटर की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने बोला 4 और 5 है, यानी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर की मैनेजरियल पर्सन नहीं होने चाहिए उस एंटिटी के, ये कब तक नहीं हो सकते आप? इसमें इन्होंने कूलिंग पीरियड डाला। कूलिंग पीरियड यानी सिर्फ 3 साल, कम से कम 3 साल तक तो नहीं कर सकते आप, वापस नहीं इस तरह से एक्ट कर सकते जब से आपका रिक्लासिफिकेशन हो गया है। अगर आपने ऐसा किया 3 साल से पहले, ऐसा किया कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करा रहे हो एज डायरेक्टर्स ऑफ दोज कंपनी या फिर एज की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, तो फिर आप वापस कर रहे हैं, 3 साल के बाद आप कर सकते हैं। नाउ रेगुलेशन 31A सब रेगुलेशन 5, इधर पे क्या? If any public shareholder seeks to reclassify itself as promoter, it shall be required to make an open offer in accordance with the provisions of SEBI substantial acquisition of shares and takeovers regulation. आपने पढ़े होंगे SAST regulations, कहीं नाम सुना होगा या? ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पब्लिक शेयर होल्डर अपने आप को रिक्लासीफाई कराना चाहता है प्रमोटर, अब फिर से उल्टी गंगा बहाने आ रहे हैं, बोल रहे कि नहीं अब हमको पब्लिक नहीं बनना, हमको प्रमोटर बना दो, तो क्या करेगा कि शैल रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन ऑफर इन अकॉर्डेंस विथ, फिर आपको ना एक ओपन ऑफर देना पड़ेगा कि जो सेबी रेगुलेशन सेस्ट सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड शेयर टेक ओवर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। रेगुलेशन 31A सब रेगुलेशन 6, in case of transmission, succession, inheritance and gift of shares held by promoters person belonging to the promoters group, अगर आपने कोई भी ट्रांसमिशन या फिर कोई किसी के द्वारा सक्सेशन, मतलब आपने या तो कोई प्रमोटर था, ठीक है, जो प्रमोटर ग्रुप में था, उनके शेयर्स आपके पास इनहेरेंटली आ गए, या उसने आपको गिफ्ट कर दिए शेयर्स, या फिर कोई ट्रांसमिशन हो गया, हाँ, या फिर उसने सक्सेशन के तहत आपको मिले हैं उसके शेयर्स, तो फिर इमीडिएटली ऑन सच इवेंट द रिसीट ऑफ सच शेयर्स शैल बी क्लासिफाइड एज प्रमोटर्स और पर्सन बिलोंग। तो क्योंकि आपको मिले किससे?
ओरिजिनली वो किसके पास थे, प्रमोटर के पास। तो आप क्लासीफाई भी जो ओरिजिनल स्टेटस था ना, जिसके आपको मिले हैं शेयर्स, या जिससे आपको गिफ्ट मिला है, या जिससे आपको इनहेरिटेंस मिली है, उसके ही जैसा क्लासीफाई होगा, यानी कि आप भी प्रमोटर ही कहलाएंगे। सब्सिक्वेंट, ये तो जब इमीडिएटली वाली बात हुई। सब्सिक्वेंटली, इन केस द रिसिपिएंट classified as promoters, persons belonging to the promoters group, proposes to seek reclassification of status as public, it may do so to compliance, subject to the compliance with conditions specified above। तो जो conditions अभी हमने पढ़ी थी ना, रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 3 एंड सब रेगुलेशन 4 में, हाँ, तो वो वाली सब कंप्लायंस रेगुलेशन के फिर से आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप पब्लिक आ जाएंगे। ठीक है, अब मर जाए इंसान, भाई मर गया है, अब तुम बख्श दो, अब देखते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रमोटर्स और पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर्स ग्रुप, सच पर्सन शैल ऑटोमेटिकली सीज टू इंक्लूड एज प्रमोटर्स। अब मर गया, आप कहाँ क्लासीफाई करोगे, इंसान ही नहीं बचा, तो प्रमोटर क्या, पर्सन क्या, तो अब तो ऑटोमेटिकली प्रमोटर के ग्रुप से वो सीज हो गया, अब नहीं कहलाएगा वो प्रमोटर, मतलब मरेगा तभी आज़ादी मिलेगी। ठीक है, नहीं ऊपर और भी कंडीशंस हैं, प्लीज़ है ना। चलिए, रेगुलेशन 31 A subsection 7 sub regulation 7, a listed entity shall be considered as listed entity with no promoters if due to reclassification or otherwise the entity does not have any promoter। अब ऐसा हो गया कि भाई कोई प्रमोटर ही नहीं बनना चाहता कंपनी का, उस एंटिटी का, तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा listed entity with no promoters। Now regulation 31A sub regulation 8, the following events shall deem to be material events and shall be disclosed by the listed entity to the stock exchange as soon as reasonably possible and not later than 24 hours from the occurrence of the event। ठीक है, और यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि कोई भी इवेंट्स, जो ये वाली जो नीचे के इवेंट्स हैं, उनको मान लिया जाएगा मटेरियल इवेंट्स। ठीक है, उनको मान लेंगे, डीम टू बी मटेरियल इवेंट्स कब मान लेंगे, जब वो, और मटेरियल इवेंट्स तो मानेंगे, क्यों मान रहे हैं, ताकि फिर वो डिस्क्लोजर करें स्टॉक एक्सचेंज को नॉट लेटर देन 24 आवर्स। वो हमने बहुत पहले भी एक और कंडीशन पढ़ी थी, बताइए कौन से रेगुलेशन में पढ़ी थी, कि 24 आवर्स में उन्हें रिपोर्टिंग करनी है, डिस्क्लोजर करने हैं। कौन सा रेगुलेशन था वो, यस, जिसमें हमने कहीं पढ़ा था 24 आवर्स और कहीं पढ़ा था 30 मिनट्स, बोर्ड से रिलेटेड था, मीटिंग से रिलेटेड था, यस, इट वॉज अंडर रेगुलेशन 30 डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इससे रिगार्डिंग वहीं पे पढ़ा था। अब 31 में भी इसी से रिगार्डिंग कुछ है, कब होगा ऐसा, जब receipts of request for reclassification by the listed entity from promoter seeking the reclassification, यानी जब हमको ऐसा कोई एप्लीकेशन मिल रहा है जहाँ प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन चाहते हैं, minutes of the boards considering such request which would include the views of the board of the request, फिर submission of application for reclassification of status as promoters public by the listed entity to the stock exchange, last decision to the stock exchange on such application as communicated by to the listed entity। सारा एक ही चीज़ से रिलेटेड हो गया है, जहाँ पे प्रमोटर्स ने बोला था हमको रिक्लासीफाई कर दो, फिर उसमें बोर्ड ने अपने व्यूज़ दिए थे, फिर वो जो व्यूज़ दिए थे उसको आपने सबमिट किया उस एप्लीकेशन को, फिर उसका स्टेटस एक्सेप्ट किया, फिर जो डिसीजन आया स्टॉक एक्सचेंज का, वो सारा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो इवेंट हुआ ना, तो जब ये इवेंट अकर हुआ उससे 24 आवर्स के अंदर आपको इसकी रिपोर्टिंग, डिस्क्लोजर करना है इसका। ठीक है, the provision of sub-regulation 3 and 4 and sub-clause A, B of sub-regulation 8 shall not apply। समझ रहे हैं आप किस किस की बात हुई है। 3 और 4 में क्या था, सब-रेगुलेशन 3 में था जहाँ पे वो बोल रहा है कि प्रमोटर को पब्लिक में बना दो। ठीक है, प्रमोटर पब्लिक में बनना चाहता है। 4 भी वही कहता है, पर 4 में क्या कहता है कि अभी भी ख़त्म नहीं है, कुछ और, प्रमोटर जब पब्लिक बन गया उसके बाद भी कुछ कंडीशंस करनी पड़ेंगी उस कंडीशन में। और 8 में ये जो 2 कंडीशन पड़ी, जहाँ पे आपने क्या बोला, प्रमोटर पब्लिक में जाना चाहता है और बोर्ड ने उसका व्यू
रिक्वेस्ट उसकी, उस पर बोर्ड के क्या व्यू है। ऐसी दो कंडीशंस में ये रेगुलेशंस के प्रोविजंस नहीं अप्लाई होंगे इफ रिक्लासिफिकेशन ऑफ promoters group of the listed entity is as per the resolution plan approved under section 31 of the insolvency code, subject to the condition that such promoters seeking reclassification shall not remain in control of the listed entity। यानी अब वो यहाँ पे भी मेनली कवर वही चीज़ की गई है कि प्रमोटर कहता है कि मुझे प्रमोटर नहीं रहना है, मुझे पब्लिक में क्लासिफाई कर दो। बट ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने कोई रेजोल्यूशन प्लान जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत गया था सेक्शन 31 में, वो अप्रूव हो गया है। तो फिर आपको ना इनकी ये जो ऊपर कंडीशंस थी ना, इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए, कंट्रोल नहीं हो, ये नहीं हो। मतलब इसके बाद हो भी गया ना तो भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक स्कीम से आपको कन्वर्ट किया गया है, आप अपनी इच्छा से नहीं आए कि कन्वर्जन के लिए आए हों। ठीक है, अब जाते हैं थोड़ा सा, आई गेस रिलीफ मिलेगा आपको 31 से। हाँ, बट रिलीफ नॉट सो ईजी बिकॉज लॉट मोर रेगुलेशन, अगर अप्रोक्सीमेटली 48 रेगुलेशंस तो इसी के अंदर हैं अभी। एंड देन वी हैव अदर things also to see. Okay, I'm not making you uncomfortable or scaring you with something. Let's move on. Regulation 32 statement of deviations or variations, नाम से ही समझ में आ रहा है, very easy to see that कोई भी देखो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग देनी पड़ती है आपको। पब्लिक इशू किया है, राइट इशू दिया है, प्रेफरेंशियल इशू दिया है, तो उस क्वार्टरली स्टेटमेंट में क्या इंडिकेट करेंगे? इंडिकेटिंग कोई भी डिविएशन इफ एनी इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टेटेड। हाँ, अगर आप जो भी प्रोसीड कर रहे हो, चाहे पब्लिक इशू कर रहे हो, राइट इशू कर रहे हो, प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो, तो उसमें कोई भी डिविएशन आता है तो उसको आप क्वार्टरली इंडिकेट करेंगे। इंडिकेटिंग कैटेगरी वाइज वेरिएशंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स एंड मार्केटिंग, working capital etc. between project utilization of fund and the actual utilization of fund placing before the audit committee reviews. इसमें क्या कह रहे हैं कि पहला तो कोई भी डिविएशन हो वो इंडिकेट करिए क्वार्टरली स्टेटमेंट में। फिर सेकेंड, कोई भी कैटेगरी ऑफ वेरिएशंस आए, फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी में वेरिएशन आ रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में वेरिएशन आ रहा है ड्रास्टिक, या फिर वर्किंग कैपिटल वेरिएशंस आ रहे हैं, तो बिटवीन प्रोजेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड और एक्चुअल यूटिलाइजेशन में वेरिएशन आ गया। एक्चुअल देखो वेरिएशन कब आता है? जब एक्चुअल और आपका जो प्रपोज्ड है उसमें कुछ अगर वेरिएशंस हैं तो आपको वो भी डिस्क्लोज करने हैं। ठीक है, अब प्रिपेयर एन एनुअल स्टेटमेंट of fund utilized for purpose other than those stated in the offer document, prospectus, notice certified by the statutory auditor and place it before the audit committee till such time the full money raised through the issue have been fully utilized. ठीक है, अब आपको एक एनुअल स्टेटमेंट देना है कि फंड कहाँ यूटिलाइज किया, क्या उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जैसा आपके ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस में बताया गया है, या फिर जैसा आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफाई कर रहा है। ये एंड जो भी आपने किया, ये एनुअल स्टेटमेंट जो आप बना रहे हो, इसको ऑडिट कमेटी के सामने देना चाहिए आपको कि कितना आपने यूटिलाइज किया और किस तरह का ये किस तरह का ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुआ। Now, in case fund raised through preferential allotment or qualified institutional placement, the listed entity shall disclose every year the utilization of such fund during that year in its annual report until such funds are fully utilized. देखो जब तक आपने कोई फंड है, ठीक है, आपने कोई फंड से यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया, हाँ, आपने ये वाला जो फंड यूटिलाइज करना शुरू किया है, ये फंड आपने रेस कैसे किया था? ये आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके दिया था या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से रेज किया था? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया था? तो ये वाले फंड से जो आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो ना, इसका आपको हर साल की एनुअल रिपोर्ट में इसके यूटिलाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा, इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कब तक? जब तक ये पूरा फंड फुली यूटिलाइज होकर ख़त्म नहीं हो जाता। Fine, this was regulation 32, statement of deviations and variations. Next coming is regulation 33, that is financial results. This is mark, this is very important, this is seriously important because
this is something where I will not say कि you have to mug up the things, but yes, this is a very important aspects whereby financial results have to be seen and the entire process has to be seen, and if the important part is इसका timely disclosure होना बहुत ज़रूरी है, because it affects the interest and decisions of the investors and public at large. So mark this regulation as important. Financial results, let's see what are the requirements of this regulation. The financial results shall be prepared on the basis of accrual accounting policies. यानी यहाँ पे कैश अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं फॉलो करना है, अक्रूवल अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रिपेयर करने हैं. या फिर एंड शैल बी इन अकॉर्डेंस विथ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड फॉर ऑल द पीरियड. जो एक पीरियड में अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की, उनने तो वैसे बता ही दिया है आपको अक्रूवल अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है. अक्रूवल अकाउंटिंग पॉलिसी आपने एक पीरियड के लिए फॉलो की, तो यू हैव टू कंप्लाई इट विथ ऑल द अकाउंटिंग पीरियड्स. एक इंटायर अकाउंटिंग प्रैक्टिस बनानी है. फिर इसके बाद द फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड शैल बी इन अकॉर्डेंस विथ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड फॉर ऑल द पीरियड्स. नाउ द फाइनेंशियल रिजल्ट जो भी आप प्रिपेयर किए, इसको अपने अक्रूवल बेसिस पे बनाए, ये तो ऊपर ही बोल दिया. फिर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग, ओके दिस इज अ रिपीटेटिव पार्ट, ए हैज़ बीन रिपीटेड. The quarterly and yearly day-to-day results shall be prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Accounting Standards 25 or Indian Accounting Standard AS 25 or IAS 31, that is AS 31, Ind AS 34, Interim Financial Reporting as applicable. स्पेसिफाइड सेक्शन आपने पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन फाइनेंशियल रिजल्ट से डील करता है, सेक्शन 133. तो इंटायर सेक्शंस आपको डिस्क्लोज कर दिया कि उनके कंप्लायंस करते हुए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बनाना है. फिर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर गैप, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंडिया में जो फॉलो होते हैं उसके हिसाब से ही आपको स्टैंड अलोन और एज वेल एज आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चाहिए. However, in addition to above, the listed entity may also submit the financial results as per the international financial reporting standards. देखो, अगर ऊपर की एंटिटी जो लिस्टेड है, ऊपर के हिसाब से तो आपको बनाना है, जो जो लॉज इंडिया में फॉलो हो रहे हैं उनके हिसाब से तो आपको बनाना है. पर अगर आपने इंटरनेशनल लेवल की भी बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल IFRS पढ़ा होगा आपने अगर कभी सुना हो, तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड देता है, उनके हिसाब से भी कंप्लायंस होनी चाहिए उसकी. ठीक है, फिर आते हैं, अभी फर्स्ट पार्ट में हम चल रहे हैं. फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है, प्रिपरेशन से डील कर रहा है, ओनली डीलिंग विथ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ द लिस्टेड एंटिटी शैल मेक डिस्क्लोजर्स एज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 4. ये सारी फॉर्मेलिटी वाली पार्ट्स हैं. नाउ सेकेंड पार्ट, अभी फर्स्ट पार्ट में किससे प्रिपरेशन से रिलेटेड था, अब का जो सेकेंड पार्ट है ना, ये अप्रूवल से रिलेटेड है. मार्क दिस वर्ड एज इम्पॉर्टेंट, अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे कैसे है कि द क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिटेड शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Okay, approval. The quarterly financial results submitted shall be approved by the board of directors. तो जो हमने ऊपर prepare किए उनको approve करना है board of directors को. However, while placing the financial results before the board of directors, the chief executive officer and the chief financial officer of the listed entity shall certify that the financial results do not contain any false or misleading statement or figures and do not omit any material fact which may make the statement or figures contained therein misleading. तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि अभी अप्रूवल की बात आ रही है, तो अप्रूवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने हो, CEO के सामने हो, CFOs के सामने हो, उसमें कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स या मिस स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए. ठीक है ना. फिर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स सबमिटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज शैल बी साइंड बाय द चेयरपर्सन or managing director or a whole time director, or in the absence of all of them it shall be signed by any other director of the listed entity who is duly authorized by the board of director to sign the financial results. यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि जब आपका financial results approval के लिए आ गया है, board of directors ने देख लिया है कि कुछ misleading नहीं है, तो फिर
उनको साइन करना है। अब साइन कौन करेगा? साइन चेयरपर्सन कर सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कर सकता है, होल टाइम डायरेक्टर कर सकता है। अब इनमें से अगर कोई नहीं है, ना चेयरपर्सन है, एमडी भी नहीं है, डब्ल्यूटीडी भी नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कोई भी डायरेक्टर जो बोर्ड ने ऑथराइज किया है साइन करने के लिए वो साइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको सबमिट करना है स्टॉक एक्सचेंज में। नाउ द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट shall be placed before the board of directors at its meeting, which shall be approved, which approves the financial results before being submitted to the stock exchange। तो एक लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट भी जनरेट की जाती है, ये भी ऑडिटर ही देगा कि लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दे रहा है वो, फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखी जाएगी, फिर उसकी मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इसे अप्रूव किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करने से पहले। नाउ एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड शैल बी साइंड इन द मैनर स्पेसिफाइड अबव। फाइन। द लिस्टेड एंटिटी शैल, अब सबमिट की बात आई। पहला पार्ट था जो हमने देखा था, प्रिपेयर कर रहे थे, सेकेंड पार्ट में हमने अप्रूवल देखा, थर्ड पार्ट में हम सबमिशन देखेंगे। सबमिट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर। द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। कब करना है सबमिट? विद इन 45 डेज ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर अदर देन द लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर को छोड़ के बाकी जो 3 क्वार्टर बचे, उन 3 क्वार्टर में हर क्वार्टर ख़त्म होने के 45 डेज के अंदर आपको सबमिट करना है। क्वार्टरली जानी है ना, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अभी तक आप स्टॉक एक्सचेंज को जो आपको सबमिट करनी है, कब देनी है? क्वार्टरली करनी है, क्वार्टरली सबमिट करनी है, तो वो 45 डेज के अंदर एंड ऑफ द क्वार्टर से सबमिट करनी है। इन केस द लिस्टेड एंटिटी हैज़ सब्सिडरीज। नाउ अगर अब एक लिस्टेड एंटिटी है, उसकी सब्सिडरीज भी हैं, इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वन में तो आपने स्टैंड अलोन देना ही देना है, ठीक है, क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट के बेसिस पे। फिर अगर उसके बाद आपकी कोई सब्सिडरी भी है, तो ऐसे सिचुएशन में द लिस्टेड एंटिटी शैल ऑल्सो सबमिट क्वार्टरली और ईयर टू डेट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब आपकी कोई सब्सिडरी है तो स्टैंड अलोन के साथ साथ कंसोलिडेटेड भी देनी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। द quarterly and year to date financial results may be either audited or unaudited subject to the following। तो जो भी आप year to date financial statements बना रहे हो वो आपके audited भी हो सकते हैं, unaudited भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, कब चल जाएगा, कैसा? Now in case listed entity opts to submit unaudited financial statement, अगर listed entity चाह रही है, उसने बोला कि चलो मैं unaudited financial statement ही submit कर दूंगी stock exchange को, they shall be submitted to each to limited review by the statutory auditor of the listed entity and shall be accompanied by the limited review report। तो 2 टाइप की रिपोर्ट्स होंगे, एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट देगा, वो एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट देगा। फिर दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम ऑडिट नहीं करवा पाए हैं, हमारा ऑडिट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, आप लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। बट ये जो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट बनेगी ना, ये भी कौन बना रहा है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर बना रहा है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो वैलिडिटी है ना उसकी रिपोर्ट की, ओरिजिनल रिपोर्ट की, तो वैसे ही उनसे एक रिपोर्ट मांग ली गई है, जो क्योंकि अपने ऑडिट्स अभी ऑडिट नहीं हो पाए हैं। नाउ प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दिस लिमिटेड रिव्यू मे बी अंडरटेकन बाय एनी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो ये भी रिव्यू भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ही होगा। नाउ इन केस लिस्टेड एंटिटी ऑप्ट्स टू सबमिट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे शैल बी अकम्पनीड बाय द ऑडिट रिपोर्ट। ऑब्वियसली बात है, जब ऑडिट हो गई है तो भाई ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करिए आप। नाउ द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कब करना है लिस्टेड एंटिटी को? एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी तक तो हम क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बता रहे थे, ठीक है, क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट कर रहा था वो 45 डेज ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राइट। नाउ ये जो एनुअल सबमिशन देना है ये 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट्स आर द इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल ओनली। अगर ऐसा एप्लीकेबल होता है 63 में फॉर ऑडिट रिपोर्ट विथ मॉडिफाइड ओपिनियन अगर होता है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशंस देना पड़ता है, तो वो आपको 60 डेज में देना ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 60 दिन के अंदर। However, if the listed entity has subsidiaries, it shall, while submitting annual audited standalone financial statement, also submit annual audited consolidation financial statement results along with the audit report and statement on impact of audit qualification.
फॉर द ऑडिट रिपोर्ट, अगर देखिए आपकी लिस्टेड एंटिटी की सब्सिडरी है तो भाई उसका आपको स्टैंड अलोन भी देना है, उसका कंसोलिडेटेड भी देना है, उसको भी इसी तरह देना है कि 60 डेज के अंदर. However, in case audit report of with unmodified opinion, the listed entity shall furnish declaration to the effect to the stock exchange while publishing the annual audit financial results. Now, the listed entity shall also submit the audited and limited review financial results in respect of the last quarter along with the results for the entire financial year with a note stating that figures of last quarter are the balancing figure between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the third quarter. बहुत बढ़िया. इधर उसने ना शॉर्टकट मारा, उसने बोला 3 क्वार्टर का, तो आपने मुझसे बोला क्वार्टर एंड के 45 डेज के अंदर दीजिए. अब फोर्थ क्वार्टर भी देनी है ना मुझे सेबी को, तो सेबी ये लो पूरे साल का लो, पूरे साल का लो, और 3 क्वार्टर का मैं आपको दे ही चुका हूँ. इस पूरे साल में से वो 3 क्वार्टर का हटा लेना, जो बचा वो आपका लास्ट क्वार्टर है. समझदारी. यस. The listed entity shall also submit as part of its standalone or consolidated financial results for the half year by way of a note, a statement of assets and liabilities as at the end of half year. तो listed entity को और क्या सबमिट करना है? नोट्स. स्टेटमेंट्स अपने नोट्स टू अकाउंट्स भी तो देते हैं, तो स्टेटमेंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स में देना है. नोट्स टू अकाउंट्स में तो हमें पता है फिर सब कुछ आता है, जो क्या आता है उसमें आप डिटेल्स देंगे. एसेट्स कैसे थे, क्या है एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या है, इनटेंजिबल में क्या क्या है, लाइबिलिटीज़ में करेंट है, नॉन करेंट, मतलब जो भी अंदर बाइफिकेशन है वो आपको फिर देना उसके साथ. नाउ the listed entity shall also submit as a part of standalone and consolidated financial results for the half year by way of notes, statements of cash flows for the half year. देखो यहाँ पे हाफ ईयर की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं. जो नोट्स भी बताए वो हाफ ईयर बेसिस पे बताए. फिर अब जब हमने बताया क्या चाहिए, जो भी आप स्टैंड अलोन के साथ हाफ ईयर बेसिस पे जो भी देंगे नोट्स के, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा आपको उसमें हाफ ईयर बेसिस में. द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट फॉर द पर्पस ऑफ quarterly consolidated financial state results, at least 80% of each of the consolidated revenue, assets and profits respectively shall have been subject to audit, or in case of unaudited result subject to limited review. और wonderful point they have put in, as in वो कहना चाहते हैं कि लिस्टेड एंटिटी को ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर आप क्वार्टरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो हर उसमें मतलब जब आप दे रहे हो अपनी जो क्वार्टरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हो, ये देखो कब एप्लीकेबल है, कंसोलिडेशन में, ठीक है ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो 80% ऑफ ईच ऑफ द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, एसेट्स एंड प्रॉफिट्स रिस्पेक्टिवली, तो हर एक का, रेवेन्यू का 80%, रेवेन्यू का 80%, एसेट्स का 80%, प्रॉफिट्स का 80% शैल हैव बीन सब्जेक्ट टू ऑडिट. या ओवरऑल आपका 80% तक का ऑडिटेड होना चाहिए. और अगर आप अनऑडिटेड दे रहे हो तो क्वार्टरली बेसिस में तो एटलीस्ट लिमिटेड रिव्यू हो चुका होना चाहिए उसमें 80% का. ठीक है. द लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज in the results for the last quarter in the financial year by way of notes the aggregate effect of material adjustment made in the results of that quarter which pertains to the earlier periods. Now the list उसमें क्या डिस्क्लोजर देना है कि जो रिजल्ट्स हैं लास्ट क्वार्टर के ना, तो उसमें एक नोट डालना है आपको जिसमें आप कह रहे हो कि एग्रीगेट इफेक्ट जो है ना मटेरियल एडजस्टमेंट देने के बाद बना हुआ है, तो जो भी क्वार्टर बच रहा है ना वो उसको बाकी क्वार्टर अर्लियर पीरियड्स के क्वार्टर के फिगर्स माइनस कर दो, तो आपको ये वाला जो बचा हुआ क्वार्टर है उसकी फिगर्स मिल जाएगी. तो वो उसको चीज़ को आपको एक नोट बस डालना है, नथिंग मच. द एप्लीकेबल फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑन इम्पैक्ट शैल बी इन अ मैनर स्पेसिफाइड बाय सेबी. अगर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन है ऑडिटर का तो फिर वो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है सेबी का, उसके हिसाब से देना है. The statement on impact of audit qualification for audit report with modified opinion and accompanied annual audit report submitted in terms of clause D of sub-regulation shall be reviewed by stock exchange. Okay, not in regulation. Now, next regulation 34, right? 34 regulation is on annual report. अभी हमने क्या पढ़ा? Regulation 33. फाइनेंशियल रिजल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड रिमेंबर रेगुलेशन 33 बाय हार्ट. कि 33 क्या है?
financial results. Now 34 is audit report, annual report. The listed entity shall submit to the stock exchange and publish on its website. दोनों की बात की है, सबमिट भी करना है स्टॉक एक्सचेंज को और अपनी वेबसाइट में पब्लिश भी करना है. क्या? अ कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट सेंड ऑन टू द शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू इट्स शेयर होल्डर्स. जो एनुअल रिपोर्ट बननी है, ठीक है, उसकी कॉपी आपको सबमिट करनी है, ठीक है, विद द किसके साथ? आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग में नोटिस जा रहा है ना, उसके साथ आपकी एनुअल रिपोर्ट की कॉपी भी सबमिट करनी है. फिर नॉट लेटर देन कमेंसमेंट ऑफ द डिस्पैच टू द शेयर होल्डर्स. ओके, ठीक है. फिर इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द एनुअल रिपोर्ट द रिवाइज्ड कॉपी विद द डिटेल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर द चेंज शैल बी सेंड नॉट लेटर देन 48 आवर्स आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग. अब अगर कोई चेंजेस आए उस एनुअल रिपोर्ट में और आपकी AGM हो चुकी है तो उसके ख़त्म होने के 48 घंटे के अंदर अंदर आपको ये चीज़ की रिपोर्टिंग दे देनी चाहिए, ठीक है ना. एनुअल रिपोर्ट शैल कंटेन. अब एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या दिया जाता है? एनुअल रिपोर्ट में क्या हो जाएगा? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है तो बोले तो कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इसके साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगे, ऑडिटेड, जो कि ऑडिटेड होने चाहिए आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा. फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जाएंगे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट जाएगी, MDA जाएगा, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट. फिर जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़ होती हैं, आपको पता होगा ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ऐसे 500 एंटिटीज़, लिस्टेड एंटिटी जो टॉप में आती हैं, उनको तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी देनी है. तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट जिसमें डिस्क्राइब करेंगे इनिशिएटिव्स जो वो इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव के लिए सोच रहे हैं, इन द फॉर्मेट. सेबीज का भी एक फॉर्मेट देगा उसमें. फिर कोई भी अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है शेड्यूल 5 में, वो भी देख लीजिएगा. फिर रेगुलेशन 35 एनुअल इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम. ये सारे ऐसे रीड करने वाले हैं. अभी अब जो आएंगे ना तो छोटे 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 से इनको आपको रीड बस करना है. एनुअल इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम टू बी सबमिटेड, एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है, सालाना एनुअल बेसिस में आपको देना है. रेगुलेशन 36 डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हाँ, इस बार जो भी डिविएशंस होंगे उसको आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में डिविएशंस शो करते हुए देते हैं, ठीक है. अब रेगुलेशन 36 में डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स की बात करते हैं ना. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशंस जाती हैं? सॉफ्ट कॉपी और फुल कॉपी रिपोर्ट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में, हार्ड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट्स कंटेनिंग द सेलिएंट फीचर्स, हार्ड कॉपी ऑफ फुल एनुअल रिपोर्ट्स ऑन रिक्वेस्ट जाएगी. फाइन, ये रीड करना है आपको. प्लीज़ गो थ्रू इट. नथिंग मच आई कैन लाइक, देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन. यू जस्ट रीड दिस. ड्राफ्ट स्कीम भी आप रीड करिए. 38 मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग. ये अभी एक बीच में मेंशन हुआ था जहाँ मैंने आपको बताया था कि कंप्लाई विद द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 19. वो आपको सिक्रा में मिलेगा ना, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स में कितनी मिनिमम शेयर होल्डिंग है. हर एक की अलग अलग है. प्रमोटर्स की अलग है, नॉर्मल शेयर होल्डर्स की अलग है, तो उनकी शेयर होल्डिंग मिनिमम वहाँ पढ़ सकते हैं आप. रेगुलेशन 39 पे आपको पढ़ना है जस्ट अ ग्लांस. नाउ शेड्यूल 6 मैनर ऑफ डीलिंग विद अनक्लेम्ड शेयर्स. Not so important, can read it, like you can just give a glance. I guess थोड़ा बहुत समझाने का होगा तो भी. कहाँ पे procedures? I'll come to this regulation at last. I guess if ये जो schedule है manner of dealing with unclaimed shares, अगर कुछ points हैं I guess थोड़ा सा कुछ explain कर सकते हैं अपन. I'll come to this. बट रेगुलेशन 40 की बात करते हैं. ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन सुना ही होगा. क्या होता है ट्रांसफ़र? जब ए ने बी को सेल कर दिया और बी ने ए को कंसिडरेशन दे दी, ट्रांसफ़र हो गया. ट्रांसमिशन क्या हुआ? ए ने सब कुछ बी को दे दिया, ट्रांसमिशन ऐसे ही दे दिया. कंसिडरेशन की बात मत करिए अभी इसमें. ट्रांसपोजिशन, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया और सी ने ए को दे दिया, तो ये ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन साइकिल. Okay, transfer, regulation 40, transfer, transmission or transposition of securities. Comply with the provisions of Securities Laws of Companies Act
2013 rules made thereunder ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन एंड ट्रांसपोजिशन में जितने भी सिक्योरिटीज़ लॉज हैं या कंपनीज एक्ट लगता है रूल्स उसके रिगार्डिंग, वो आपको फॉलो करना है. सी दिस इज़ मेयरली गो थ्रू वाला पार्ट की जस्ट आपको एक बार रीड करना पड़ेगा. तो आई एम जस्ट रीडिंग इट वेयर आई विल फाइंड नेसेसरी आई विल एक्सप्लेन. ओके. कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़. तो जितने भी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज से रिगार्डिंग रेगुलेशंस उनको कंप्लाई करना. एक्सेप्ट इट इन case of transmission and transposition of securities, request for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with the depositories. तो अगर यहाँ पे इनकी बात की किसका ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन की. हाँ, तो ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ में जब होगा तो उसमें रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र्स रिगार्डिंग प्रोसेस नहीं होगी. कब तक नहीं होगी? जब तक सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं होगी डिपॉजिटरीज के पास. नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी मे डेलीगेट द पावर to transfer of securities to a committee or to compliance officer or to a registrar to an issue or to share transfer agent. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या अपने पास डेलीगेट कर सकते हैं. जैसे हमने एक जगह कहीं अभी इससे पहले जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि डेलीगेशन कब नहीं हो सकता, किस लेवल तक. तो यहाँ पे तो डेलीगेशन कर सकते हैं. वो किसको कर सकते हैं? शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को कर सकते हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर को कर सकते हैं, रजिस्ट्रार टू एन इशू को कर सकते हैं. ठीक है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द डेलीगेटेड अथॉरिटीज शैल अटेंड टू द फॉर्मेलिटीज पर्टेनिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज एट लीस्ट वंस इन फोर्टनाइट. जो डेलीगेशन की हुई ना अथॉरिटीज़ की, है ना, उनको एटलीस्ट वंस इन अ फोर्टनाइट आप अटेंड करो उन्हें ना, कि उनका फॉलो अप लो. हाँ, ठीक है. उसको छोड़ मत दो कि डेलीगेशन कर दिया. इट डजेंट रिलीव यू फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए आप एटलीस्ट वंस इन अ फोर्टनाइट उस पर रिव्यू करो. द डेलीगेटेड अथॉरिटी शैल रिपोर्ट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ईच मीटिंग. तो जो डेलीगेटेड अथॉरिटीज़ हैं ना, जिनको आपने अपनी अथॉरिटी दी हुई है, उनको रिपोर्ट करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हर मीटिंग में. On receipt of proper documentation, the listed entity shall register transfer of its securities in the name of transferee and issue certificate or receipts or advices as applicable of transfer, or issue any valid object or intimation to the transferee or transferor as the case may be within a period of 15 days from the date of such receipts of request for transfer. ना ऑन रिसिट ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जब आपको सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल चुके होंगे तो फिर क्या करना है, लिस्टेड एंटिटी को अपनी सिक्योरिटीज़ जो भी रजिस्टर करना पड़ेगा उस ट्रांसफ़र को. कैसा? नेम ऑफ द ट्रांसफरी, इशू सिक्योरिटी रिसीट्स, एडवाइजेज, हाँ, उन सबको रजिस्टर करना है. इशू ऑफ वैलिड ऑब्जेक्शंस, इंटीमेशंस टू द ट्रांसफरी ट्रांसफरर. ये कब करना है? ये सारा प्रोसीजर, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, वो भी विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ. सी दिस इज़ गोइंग टू बी गो अ बिट boring because it's all about I cannot add or I cannot expand it to any extent. What is there. So transmission requests are processed for securities held in dematerialized mode and physical mode within 7 days and 21 days respectively. तो अगर ट्रांसमिशन मोड में है सिक्योरिटीज़ तो उसको डीमटेरियलाइज्ड मोड में हेल्ड कर सकते हैं एंड फिजिकल मोड में भी हेल्ड कर सकते हैं. डीमैट मोड में हेल्ड करना है तो विद इन 7 days, एंड अगर फिजिकल मोड में हेल्ड किया हुआ है तो विद इन 21 days आपको ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट के लिए ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस कराना पड़ेगा. Proper verifiable dated records of all correspondence with the investors shall be made by the listed entity. जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनका वेरिफिकेशन होना और उस वेरिफिकेशन का कॉरेस्पॉन्डेंस होना विद द इन्वेस्टर्स इज़ मैंडेटरी. Now, to register transfer when any statutory prohibition or any attachment or prohibitory order of a competent court authority restrain it from transferring from the name of the transferor, not to register the transfer of its securities in the name of the transferee when the transferors object to the transfer.
the transferor serves on the listed entity within 60 working days of raising the objection, a prohibitory order of a court of competent jurisdiction. The transferor serves on the listed entity within 60 working days of raising the objections and a prohibitory order of the court of the competent jurisdiction. तो जो भी ट्रांसफरर है उसको उस लिस्टेड एंटिटी को सर्व करना पड़ेगा कि आपने ट्रांसफ़र कर दिए हैं अपने सिक्योरिटीज़, तो 60 वर्किंग डेज ऑफ रेजिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट. अगर कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर है कोर्ट का कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अपने शेयर्स या कुछ, तो जब ऐसा ऑब्जेक्शन कोई रेज हुआ है कोई भी ऑब्जेक्शन, तो उसके 60 डेज़ के अंदर आपको उसको सर्व करना पड़ेगा. द लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट डिक्लाइन टू or register or acknowledges any transfer of shares on the ground of transferor being either alone or jointly with any other person or persons indebted to the listed entity on account of whatsoever. Now, the listed entity shall comply with all procedures requirements as specified in Schedule 7 of the with respect to transfer of securities. In case see, these are merely details. You just need to go and read this, and I don't know to what extent you will be able to retain. And this is not so important regulation also, but yes. We have to. We cannot surpass. And the things I have left is for you people to read, not to leave. So if you get time in surplus, do read them. Fine. Okay. In case the listed entity has not yet effected transfer of securities within 15 days of or where the listed entity has failed to communicate the transferee any valid objection of to the transfer within the stipulated time period of 15 days, the listed entity shall compensate the aggrieved party for the opportunity loss caused due to the during the period of delay. नाउ अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि लिस्टेड एंटिटी ने ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया है 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिन की लिमिट में, या फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाया है ट्रांसफरी को कोई भी वैलिड ऑब्जेक्शन की ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो उस 15 दिन के टाइम से बाद से अगर वो नहीं कर पाए तो उसको कंपनसेट करना, फिर लिस्टेड एंटिटी को कंपनसेट करना पड़ेगा उस अग्रीव पार्टी को कि कोई उसको लॉस हो रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ डिले. तो इसलिए लिस्टेड एंटिटी को या तो ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट कर दें जो उसने बोला है कि कहीं जिसको भी शेयर ट्रांसफ़र या सिक्योरिटी ट्रांसफ़र, या तो फिर अगर वो फेल होता है 15 दिन में, या तो फिर उसको कम्युनिकेट करें कि क्यों नहीं कर रहे, क्या ऑब्जेक्शन है उन्हें, और अगर ये नहीं कर पाते हैं 15 दिन में तो उस अग्रीव पार्टी को कंपनसेट करें. The intervening period on account of delay in transfer above, the listed entity shall provide all benefits which have accrued to the holder of securities in terms of provisions of Section 126 of the Companies Act 2013 and Section 27 of the Securities Contract Regulation Act 1956. तो इंटरवीनिंग पीरियड जो भी होगा अकाउंट्स का अगर डिले हो रहा है ट्रांसफ़र में, तो फिर क्या होगा, लिस्टेड एंटिटी को जो भी बेनिफिट्स अक्रू हो जाते हैं उन होल्डर्स पे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये सेक्शंस जो दिए हुए हैं उन सेक्शंस के अंतर्गत. नाउ इन केस एनी क्लेम difference or dispute under this sub-regulation, the same shall be referred and decided by the arbitration. Okay, अगर कोई भी dispute arise होता है तो उसे arbitration solve करेगा. Ensure that share transfer agent or in-house share transfer facility, as the case may be, produce a certificate from practicing company secretary within 1 month of the end of the each half of the financial year, certifying that all certificates have been issued within 30 days of the date of lodgement of transfer, subdivision, consolidation, renewal, exchange or endorsement of call, allotment, monies, etc. Now, here it is saying that अगर share transfer agent या फिर सॉरी इन हाउस हो सकता है, इन हाउस हो सकता है, या फिर अपन ने दो टाइप के शेयर ट्रांसफ़र एजेंट पढ़े थे, याद है? शेयर ट्रांसफ़र एजेंट का रेगुलेशन बताओ. रेगुलेशन 7, right? 7 ना guys? Regulation 7, yeah? Okay. Now उसमें अगर आपको प्रोड्यूस करना है सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, अगर आप एक महीने में हर हाफ ईयर के एंड के एक महीने के अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, ठीक है, उस हर
ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड होने के एक महीने में अगर आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का नहीं वो इशू कर पाते हैं सर्टिफिकेट, तो फिर आपको इंश्योर करना है कि आप क्या करें within 30 and certify that all certificates have been issued within 30 days of lodgement transfer. ओके, आपको इंश्योर करना है कि जब इसमें कुछ कंपनसेटरी प्रोविजन नहीं है, इसमें ये कहा गया है कि बस एक महीने हर आधे साल फाइनेंशियल ईयर के हाफ ईयर एंड होने पे आपने शेयर ट्रांसफ़र एजेंट ने सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इशू कर दिया हो, और अगर आपका कुछ लॉजमेंट ट्रांसफ़र सबमिशन सब डिवीजन कंसोलिडेशन ऐसा कुछ है तो फिर आपने विद इन 30 डेज ऑफ द सेम कर दिया हो. इंश्योर दैट सर्टिफिकेट मनीज अबव शैल बी filed with the certificate mentioned above have been filed with the stock exchange simultaneously. जो भी सर्टिफिकेट ऊपर जिनकी बात हो रही है उनको आपने स्टॉक एक्सचेंज में भी फाइल कर दिया हो, ये भी देखिए. इन एडिशन टू द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई एज, अगर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ हो रही है तो ये प्रोविजन शैल इन चीज़ों में भी अप्लाई होंगे. किसमें? डिलीशन ऑफ द नेम ऑफ डिसीज्ड, कोई मर गया, सॉरी कोई शेयर होल्डर नहीं रहे हैं तो उन डिसीज शेयर होल्डर्स की सिक्योरिटीज़ का डिलीट करना नाम, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज टू द लीगल हायर, ट्रांसपोजिशन. तो जब अब बच्चे नहीं हैं इंसान तो फिर जो भी आगे की प्रोसीजर है उनका भी नाम आ जाना बुक्स में, ये भी इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है. रेगुलेशन 41 अगेन रीड, इट्स अ रीड शेयरली like share reading is required for this. I am not gonna go into it now. The next that I am going to go is regulation 42, mark it as important, very important rather, which is record date or date of closure of transfer book. Now advance intimation of record date for the following purposes is required. अभी तक हमने याद है 5 to 11 वो डेट्स पढ़ी थी, अब इधर पे भी एडवांस इंटीमेशन है, ठीक है. वो वाला इंटीमेशन अलग था, डिस्क्लोजर्स बोर्ड मीटिंग से पहले की इंटीमेशंस थी. अब ये क्या है? रिकॉर्ड डेट की इंटीमेशन करनी है. वो बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड डेट जो भी होने वाली है उसकी इंटीमेशन करनी है. कब? At least 7 days notice for record date or date of closure of transfer books for the purpose of declaration of dividend, issue of bonus shares or right shares, issue of shares for conversion of debentures, share arising out of rights attached to debentures, corporate actions like mergers, demergers, splits, bonus shares, such other purpose as may be specified. Now यहाँ पे बात हो रही है कि at least 7 working days का नोटिस दीजिए फॉर रिकॉर्ड डेट या फिर डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक. किन पर्पस के लिए? इन स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए आप 7 वर्किंग डेज का इंटीमेशन दीजिए. नाउ रिकमेंड और डिक्लेयर ऑल डिविडेंड्स और कैश बोनस एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज. अभी देखो इधर पे भी सेम केस है, आपको लर्न करना है तो फिर भाई ये 5 डेज हैं 7 डेज हैं, तो 5 डेज के लिए तो एक पर्टिकुलर चीज़ देख ली है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स एंड कैश बोनस. तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स एंड कैश बोनस की बात आएगी तो एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट की बात है, ठीक है. अब यहाँ पे जो आया है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड और कैश बोनस और ऊपर भी है, तो इसको अपन बाइफिकेट कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ना सिर्फ डिक्लेरेशन की बात हो रही है. यहाँ पे अगर रिकमेंडेशन की भी बात हो, रिकमेंडेशन भी होनी हो डिविडेंड्स की, तो फिर 5 वर्किंग डेज पे आप क्लासीफाई जंप कर सकते हो. फिर इंश्योर द टाइम गैप ऑफ एटलीस्ट 30 डेज बिटवीन 2 रिकॉर्ड डेट्स एंड बुक क्लोजर्स. हाँ, अगर आपकी कोई भी 2 रिकॉर्ड डेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कम से कम 30 दिन का गैप होना चाहिए. फॉर सिक्योरिटीज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म में अनाउंस डेट्स ऑफ क्लोजर्स ऑफ इट्स ट्रांसफर बुक्स इन प्लेस ऑफ रिकॉर्ड डेट्स. ट्रांसफ़र बुक्स क्लोजर की डेट पर आप बता सकते हो. अगर फिजिकल फॉर्म में है तो रिकॉर्ड डेट नहीं बता पाएंगे तो आप जो क्लोजर ऑफ इट्स ट्रांसफ़र बुक है उनकी डेट बता दीजिए, ठीक है. नेक्स्ट इज़ 43 रेगुलेशन 43 डिविडेंड. डिक्लेयर एंड डिस्क्लोज द डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस ओनली. तो आपका जो डिविडेंड है ना वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लमसम में बता रहे हैं आप उसे पर शेयर कितना डिविडेंड दे रहे हैं वो डिक्लेयर और डिस्क्लोज करना ज़रूरी है. ना शैल नॉट forfeit unclaimed dividend before the claim becomes barred by law and such forfeiture if effected shall
बी annulled इन अप्रोप्रिएट केसेस। तो ठीक है, उनका ये कहना है कि अगर डिविडेंड नहीं क्लेम कर रहे हैं, तो अपन ने पढ़ा था कभी अपनी एग्जीक्यूटिव के लेवल पे कि 7 साल के लिए आपको वेट करना चाहिए, कीप इट इन सेपरेट अकाउंट एंड ऑल, ठीक है ना। तो अगर 7 साल तक नहीं ऐसा आया है तब अपन कर सकते हैं, वरना आप फोरफिट नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसा कोई एक्शन दिया तो उसको हम अनल इन अप्रोप्रिएट केसेस मान लेंगे कि ये वैलिड नहीं है ये एक्शन। Now, regulation 43A, dividend distribution policy, this is also important, market as very important, DDP. Now, top 500 entities based on market capitalization shall formulate a DDP. तो किनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है इनकी DDP यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी? उन टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को बनानी है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप 500 में आते हैं। DDP shall be disclosed in their annual reports and on their websites. Fine. Now, the dividend distribution policy shall include the following parameters. अब DDP में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो हम देखते हैं। First, the circumstances under which the shareholders of the listed entity may or may not expect dividend. तो कौन से circumstances हैं जिसमें शेयर होल्डर जो हैं लिस्टेड एंटिटी के वो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें वो डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको सर्कमस्टेंसेस ले डाउन करने चाहिए आपकी डीडीपी में, ठीक है। या फिर करना चाहिए उन्हें एक्सपेक्ट या फिर नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि डिविडेंड मिलेगा, वो चीज़ें आपको मेंशन करना है। द फाइनेंशियल पैरामीटर्स दैट शैल बी कंसिडर्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड, ठीक है। अब इसमें फाइनेंशियल पैरामीटर्स कंसिडर करना चाहिए आपको डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट शैल बी कंसिडर्ड, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अब जब भी आप डिक्लेयर करो, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेरेशन के बारे में सोच रही है तो क्या देखेगी, देखो उसको उसमें क्या क्या चीज़ें देखेगी, वही चीज़ें तो मेंशन करेगी। वो देखेगी कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि लिस्टेड एंटिटी को अभी डिविडेंड देना चाहिए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि नहीं देना चाहिए, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कह रही है उसके एंटिटी की, फिर उसके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, उसके डिविडेंड को देना चाहिए या फिर उन्हें अपने फर्म की ऑपरेशन में ही वापस री इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। फिर उनकी पॉलिसी क्या है रिटेंशन की, यानी कि कंपनी कितना अमाउंट है उसको रिटेंशन करती है। फिर उनके पैरामीटर्स क्या अडॉप्ट हो सकते हैं अदर क्लासेस ऑफ शेयर्स के लिए, ठीक है। तो पॉलिसी एज टू हाउ द रिटेन्ड अर्निंग्स शैल बी यूटिलाइज, अब अगर जो भी पैसा रिटेन किया है उसका यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, क्या उसे डिविडेंड के लिए दे देना चाहिए या उसे वर्किंग कैपिटल की तरह यूटिलाइज करना चाहिए, या फिर क्या पॉलिसी है उस कंपनी की, उस पर डिपेंड करता है ना। फिर if the listed entity proposes to declare dividend on the basis of the parameters in addition to the clauses of A to E, or proposes to change such additional parameters or the dividend distribution policies contained in any parameter, it shall disclose such changes along with a rationale for the same in the annual report and on its website. अब जो ऊपर जो DDP बना दी है कंपनी ने, suppose some fine day they feel that they need to change the parameters that they have mentioned in the DDP, तो उस चेंज को करने के लिए they have to disclose the same in their annual reports as well as in their website. Now listed entity other, वो कब किनको करना है, जो आपके 5 listed top 500 listed entities हैं, ठीक है। अब जो listed entities other than top 500 may disclose the DDP on a voluntary basis, आपकी इच्छा है, करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए, ठीक है। Now next regulation 44, that is meeting of shareholders and voting. This you have read in your lower classes, what is the meeting of shareholders, ठीक है, general meeting, so you can just give a glance over it, ठीक है। फिर next is, this is important, okay, mark this, regulation 45, change in the name of listed entity, it is important. Now listed entity is allowed to change its name subject to compliance with the following condition. देखो नाम चेंज करना कोई छोटा मोटा खेल नहीं है ना, कि आप बड़ा फ्रॉड कर दो, कल को नाम चेंज करके बैठ जाओ, फिर बोलो कौन रिस्पॉन्सिबल है, हम तो नहीं है, ये तो हम नहीं थे, हमारा नाम तो ये है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशल थिंग टू डू, सो इस पर रेगुलेशन होना वॉज इम्पॉर्टेंट एंड हेंस रेगुलेशन 45 इज इम्पॉर्टेंट। नाउ एटलीस्ट 1 year has elapsed from the last name change. Okay, अब आपको क्या करना है कि आपको कब कौन से
अगर आपको नेम चेंज करना है तो क्या कंप्लाइंसेस फॉलो करने होंगे? तो भाई आपने जब लास्ट टाइम नाम चेंज किया था उससे कम से कम 1 साल बीत चुका होना चाहिए जब आप दूसरी बार ही नाम चेंज कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं हो कोई फ्रीक्वेंटली नाम चेंज कर रहा है मतलब समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन, लाइक ही इज अप टू समथिंग रॉन्ग, ऐसा मीन्स इट कम्स टू द माइंड ऑफ general person. So it is a criteria कि at least 1 year has elapsed from the last name change. At least 50% of the total revenue in the preceding 1 year period have been accounted for by the new activity suggested by the new name. See, when you are taking the when you are changing the name, obviously you are changing for the cause of some particular purpose. तो जिस new purpose के लिए आपने नाम change किया था last time, ठीक है, 1 साल पहले मैंने ए कंपनी लिमिटेड से बी कंपनी लिमिटेड से रजिस्टर करा लिया ना। बी कंपनी रजिस्टर कराने के लिए इसलिए था क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट बी पे डील करना शुरू करने वाली थी। तो अब नाउ यू हैव टू इंश्योर दैट 50% जो आपका टोटल रेवेन्यू पिछले 1 साल में अर्न हुआ है उस टोटल रेवेन्यू का 50% एटलीस्ट उस न्यू प्रोडक्ट न्यू एक्टिविटी जो आपने न्यू नेम के नाम पे सजेस्ट की थी उससे आई हो। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एक्टिविटी और प्रोजेक्ट इज एटलीस्ट 50% ऑफ द एसेट्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। नाउ अब आपने नया काम भी स्टार्ट किया, न्यू एक्टिविटी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो उसमें इंश्योर करिए कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है एटलीस्ट जो आपका टोटल एसेट है ना लिस्टेड एंटिटी उसको 50% उसमें लगा हुआ होना चाहिए। इफ any listed entity has changed its activities which are not reflected in its name, it shall change its name in line with its activity within a period of 6 months from the change of the activity in compliance of the provisions as applicable to change of name prescribed under Companies Act। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये? ओके, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी ने, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ चेंज की है, फाइन, विच जो चेंज ऑफ एक्टिविटी हुई वो उनके नाम से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, तो फिर इट शैल चेंज इट्स नेम। अब अगर मैंने सपोज ए से बी किया था तो मैं प्रोडक्ट बी से डील कर रही थी, इसलिए मतलब मैं एक्टिविटी बी पे डील करने वाली थी इसलिए मैंने बी नाम रखा। पर सपोज मैंने ए से बी रखा और मैं डील करने वाली हूँ सी प्रोडक्ट, तो इट हैज़ नो रेलिवेंस विद द चेंज ऑफ नेम, राइट? My change of activity has no relevance with the change of name, right? So now here it is written that its activity, it shall change its name in line with its activity within a period of 6 months from the change of activities in compliance with the provisions as applicable to the change of name prescribed under Companies Act 2013। तो आप अपना नाम अब बी कंपनी से चेंज कर दो, सी कंपनी कर दो, क्योंकि आप सी में डील कर रहे हो, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ अवेलेबल कंफर्मेशन एंड बिफोर फाइलिंग द रिक्वेस्ट फॉर चेंज विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ओके, अगर आपने रिसिप्ट अवेलेबिलिटी कंफर्मेशन की ले ली है, ठीक है, कि हाँ नाम है अवेलेबल, ऐसा सब कंफर्मेशन ले लिया है, लेना है मतलब, ठीक है, फिर ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ना। नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो नाम चेंज करने के लिए आपको क्या लेना है, कंफर्मेशन लेना है बिफोर फाइलिंग द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ नेम टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो पहले पता तो कर लो उनसे कि क्या ये नेम अवेलेबल है, उस अवेलेबिलिटी का कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए आपको। सीक अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। आरओसी ने जब आपको ये कंफर्मेशन दे दिया, हाँ भाई सी लिमिटेड या फिर बी लिमिटेड कंपनी नाम अवेलेबल है, आप रख सकते हैं, तो फिर आप जाइए, फिर आप अप्रूवल लीजिए स्टॉक एक्सचेंज का। सबमिट अ सर्टिफिकेट from a chartered accountant stating compliance with conditions as mentioned above। तो जो भी conditions आपने ऊपर mention की है, इसका एक सर्टिफिकेट लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि आपने वो conditions कंप्लाई की हैं। नाउ 46 इट्स अ टाइम पास, अगेन यू जस्ट नीड टू गो कि वेबसाइट में, इसमें आता भी है लाइक क्वेश्चन कैन कम इन कि व्हाट आर विच रेगुलेशन डील्स इन एंड व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ मेकिंग लॉन्चिंग ऑफ नेम इन द वेबसाइट, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि फंक्शनल वेबसाइट कंटेनिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट लिस्टेड एंटिटी, दिस एनिमिनेट्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या डिटेल्स ऑफ बिजनेस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, कॉम्पोजिशन, जितना कुछ आता है ना। देखो आपको वेबसाइट में आपके बारे में सब कुछ होना चाहिए, जो एक नॉर्मल आपने पढ़ा होगा ना, कंपनी लॉ पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि वेरियस कमिटीज़ जो बनती हैं, रेम्यूनरेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन, ओके, देन स्टेक होल्डर्स कमेटी, तो व्हाट ऑल कमेटी का कॉम्पोजिशन बताना पड़ेगा। फिर
आपने जो भी पढ़ा है कि कोड ऑफ कंडक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल्स का बताना पड़ेगा, विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर पॉलिसीज के बारे में बताना पड़ेगा, फिर कि क्या क्राइटेरिया होगा कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कैसे पेमेंट होगी, वो उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डीलिंग का डिस्क्लोजर होना चाहिए, मटीरियल सब्सिडरीज से रिलेटिंग होना चाहिए डिस्क्लोजर्स, फिर a lot many things, familiarizing programs, number of programs attended by independent director, okay, email address for grievance addresses होना चाहिए। grievance addresses से related हमने एक regulation बताया था, कौन सा था वो regulation जहाँ grievance addresses से related था? Anybody? grievance redressal कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? था कि नहीं था? नहीं था। ओके, सम किसी को याद आए तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। मेरे को तो ऐसा लग रहा था। चलिए ठीक है। नाउ ग्रीवेंस एड्रेसेस से रिगार्डिंग हमें बोर्ड में उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी थी, यस ना, बस। फिर contact information of the designated officials of the listed entity who are responsible for assisting and handling investors grievances. Now जो भी इन सबको हैंडल कर रहा है भाई, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो कोई कॉन्टैक्ट कर सके, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दो, लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न दे दो, अग्रीमेंट मीडिया कंपनी, blah blah. There are a lot many, exhaustive list is there, yeah, people you can just scroll down and remember whatever you can remember, like whatever you can retain, exam point of time, that's a glitch. Therefore fine. Now regulation 47, advertisement in newspapers. This is also, please go through it, and I am leaving for you to study, for you to read, don't leave it for me to read again, right? You read it and go through it. Now regulation 48, accounting standards, comply with the applicable and notified accounting standards from time to time. Fine. Now coming up next is the periodic compliances for a listed entity for equity shares. Now this is like पीरियोडिसिटी, इसमें पीरियोडिसिटी बेस्ड इसमें क्लासिफिकेशन करके बताया गया है कि कब आपको कौन कौन से कंप्लायंसेस क्वार्टरली बेसिस पे करने, कौन से हाफ ईयरली बेसिस में करने, कौन से एनुअली करने हैं, और कौन से कंप्लायंसेस ऐसे हैं जो कोई पर्टिकुलर इवेंट के होने पे करने पड़ेंगे। तो लेट्स गो थ्रू इट, दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइज, यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रादर लर्न इट अप, बिकॉज इट्स ऑल द प्ले ऑफ dates, which timelines and dates, so you need to learn it up, no other option left, okay? Now quarterly compliances कब करना है, जब रेगुलेशन 31 किससे रिलेटेड था, 31(1)(b), ओके। हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कुछ याद है क्या? शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बोला गया था 31(1)(b) में, या उधर पे विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर करना है आपको रिपोर्टिंग, टाइमलाइन दी गई है, ठीक है। कंप्लायंस कब करना है, 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। अब यहाँ पे देखो सारे क्वार्टर का दिया हुआ है ना, तो यू कैन अकॉर्डिंगली बाइफिकेट, उसके हिसाब से आप डेट्स को कर सकते हैं। फाइन। 27 रेगुलेशन 27 कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, 27 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पढ़ा था, याद नहीं है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, या पढ़ा था, है ना। तो 27 में बोला है, देखो डेट्स का कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब कि आई कैन नॉट से कि इसका कोई वो वे आउट है कि कोई ट्रिक आई कैन टेल यू, बट ये चीज़ें ये आपने ना इसमें नहीं पढ़ी थी, लाइक अपन ने क्या किया था, अपन डायरेक्टली रेगुलेशन 15 नॉन डिस्क्लोजर्स में हमने इसका रेफरेंस देखा था, 27 लास्ट क्लॉज था, हमने डायरेक्ट 28 से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने 28 में क्या इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स पढ़ लिए थे। तो 27 तक उसमें एक अपन ने लाइन पढ़ी थी कि जहाँ आपने गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स वाला मॉड्यूल 1 पेपर 1 में आपको मिल जाएगा, बट डेडलाइन मतलब उसका डिटेल उधर है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का, बट कंप्लायंस तो करना है, कंप्लायंस की डेट्स यहाँ से हैं। फाइन, तो ये अपना खुद पढ़ेंगे, खुद लर्न करेंगे। रेगुलेशन 33 फाइनेंशियल रिजल्ट्स अलोंग विथ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट,
जहाँ एक अपन ने रेगुलेशन 32 में पढ़ा था आई गेस, जहाँ आपने बोला था डिविएशन और ये सब चीज़ों से रिगार्डिंग डिविएशन वेरिएशंस, राइट। तो पर स्टिल इसका है 30 डेज। फिर रेगुलेशन 13 स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। फिर सी गाइस सी, अभी हम याद करने की कोशिश कर रहे थे ना कौन सा रेगुलेशन था जिसमें ग्रीवियंस रिड्रेसल्स की बात हुई थी। It was regulation 13, grievance redressal mechanism, and we had said, okay, before we move on, okay, let me finish it, then I'll tell you something. Okay, regulation 32 statement of deviation variations, so इसमें कुछ दिया नहीं है, but yes, I could have written something like within 30 days wala option over here, but okay, nothing is required. Don't confuse it with this. I said over here regulation 32, I mentioned here only, but no, it's a separate thing, it's not required, right? This is a separate thing. Reconciliation of share capital audit report is separate thing. Now half yearly compliances, this was the quarterly compliances, fine. Now half yearly compliances comprises of what? रेगुलेशन दो ही हैं इसमें, देखो ये तो आप लर्न कर सकते हो। और 7 तो आपका फेवरेट है ना गाइस, 7 इज शेयर ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर एजेंट को कब कंप्लाई करना है? हाफ ईयरली बेसिस में, 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और रेगुलेशन 40 भी तो फेवरेट है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खाया था, कितना लंबा था ना गाइस। तो ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, सो विद इन 1 मंथ फ्रॉम ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एनुअल कंप्लाइंसेस देखते हैं, एनुअल कंप्लाइंसेस भी कम है, सिर्फ हाफ ईयरली क्वार्टरली कंप्लाइंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, यू नीड टू लाइक, इसमें वेरिएशंस भी बहुत हैं। बाकी जो है वो थोड़े थोड़े हैं, अपन इसको लर्न कर सकते हैं। रेगुलेशन 14 गाइस, 14 याद है? फीस बहुत छोटा सा, एक लाइन में ख़त्म हो गया था, तो ये छोटा सा है पर पैसा तो है। तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मार्च, तो यहाँ पे सिर्फ एनुअल कंप्लाइंस होगा 30th अप्रैल में। फिर रेगुलेशन 33 गाइस, दिस वाज डैम इंपॉर्टेंट, रिमेंबर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो फिर यस, विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 60 डेज के अंदर आना है, ठीक है। एनुअल कंप्लाइंसेस, नाउ वी हैव टू मूव इन फॉर फिर एनुअल रिपोर्ट्स 1 डे ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द डिस्पैच ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, ठीक है। इवेंट बेस्ड ना, इवेंट बेस्ड में क्या, कौन सी इवेंट में कब देना है तेरे को? 7 शेयर ट्रांसफर एजेंट, अगर इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट तो विद इन 7 डेज ऑफ द अग्रीमेंट, ठीक है। रेगुलेशन 28 इन प्रिंसिपल अप्रूवल बिफोर इशूइंग सिक्योरिटीज़। रेगुलेशन 29 प्रायर इंटीमेशन टू द बोर्ड एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, इसमें हमने अलग भी पढ़ा था 5 वर्किंग डेज एटलीस्ट, फिर हमने एक और पढ़ा था 11 वर्किंग डेज, तो इधर पे आप क्लासीफाई कर लेना। वही 29 के 3 पार्ट्स हैं। अब 30 disclosure of events of information, तो disclose to secure stock exchange or events as specified in part 3 part A of schedule 3, fine। 3 के भी हमने पढ़ा था disclosure of events and informations, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट A में बोला क्या था कि वो कौन से होते हैं, वो डीम टू बी मटीरियल होते ही हैं, फाइन। तो उसमें भी हमने पढ़ा था नॉट लेस देन 24 आवर्स, वहाँ भी देखा था वही चीज़ यहाँ लिखी है। और वहीं पे हमने कुछ और भी पढ़ा था जिसमें 24 आवर्स से कम 30 विद इन 30 मिनट्स में भी रिपोर्टिंग करनी थी, तो वो ये है। 30 मिनट्स वाला कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे? जस्ट गिव अ ब्रीफ रिव्यू, लाइक गो बैक, रिमेंबर 30 डेज में एक ही था या 24 आवर्स में एक था? गाइस हमने 30 मिनट्स की एक लिस्ट पढ़ी थी, याद है, जिसमें हमने बोला था कि 30 डेज़ की ये लिस्ट है। हम बार बार इसको रिफ़र कर रहे थे कि कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, फंड रेजिंग, इंक्रीज इन कैपिटल बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स, 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स, फिर कोई भी चेंजेस इन कैपिटल अगर आप में कर रहे हो, या फाइनेंशियल रिजल्ट्स कर रहे हो, या वॉलंटरी डीलिस्टिंग का डिसीजन ले रहे हो, तो यही मात्र ये 8 ऐसी चीज़ें थी जिसमें 30 मिनट्स of the meeting after the end conclusion of the board meeting आपको बताना है। और फिर बाकियों में 24 आवर्स की भी लंबी सी लिस्ट थी, फाइन। फिर 31 में शेयर होल्डिंग पैटर्न 1 डे प्रायर टू द लिस्टिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न फिर से था, तो 10 days ±2%। प्लीज रीड दीज गाइज, प्लीज लर्न दीज रादर, फाइन। फिर 46 वेबसाइट्स, go through it, right, learn it. Now next what that we are coming into is small and medium enterprises, SMEs. Now basically before starting with SMEs, let us know कि small and medium enterprise होता क्या है।
SME shall means an entity which has issued specified securities in accordance with the provisions of Chapter 9 of SEBI ICDR Regulation 2018. बहुत सही, बहुत अच्छी बात बोली, अभी तो सब समझ में आ गया मुझे ना, है ना? Okay, guys, we'll see what is basically is. Okay, now SME exchange क्या है? चलो ठीक है, इधर पे तो इनने इतना सब बता दिया, एक वर्ड आया कि इस SME exchange पे बात कर लेते हैं कि इसको समझते हैं. ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और किसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है? SME exchange. आपको खुद ही समझ में आ रहा है, जैसे सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज है वैसे ही एक एक्सचेंज यानी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म दिया गया होगा. किसने दिया होगा? कोई रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने दिया होगा. फिर इसको इसमें लिखा है कि SME exchange means a trading platform of a recognized stock exchange having nationwide trading terminal permitted by SEBI to list the specified securities issued in accordance with. फिर जो सिक्योरिटीज़ SMEs के लिए स्पेसिफाइड हैं, वो कहाँ स्पेसिफाइड है? वो सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 में स्पेसिफाइड है. तो उन्हीं की ट्रेडिंग के लिए SME एक्सचेंज बना है, ठीक है. एंड इंक्लूड स्टॉक एक्सचेंज granted recognition for the purpose but does not include the main board. मेन बोर्ड को इंक्लूड मत करना. मेन बोर्ड याद है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ के आए हैं, जितना भी अभी अपन ने पढ़ा था ना, फ्रॉम वेयर आई सेड कि यहाँ से हम मेन बोर्ड इक्विटी शेयर्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है. इक्विटी मेन बोर्ड का हेडिंग डला था वहाँ पे ना. इफ़ यू टर्न बैक योर पेजेस ना, यू विल गेट टू नो. फाइन, तो ये उससे अलग है, अपार्ट फ्रॉम दैट. अब आगे बढ़ते हैं. इसमें भी गाइस अगेन इसमें भी रेगुलेशंस हैं विच यू हैव टू स्पेसिफिकली रिमेंबर कि कौन सा रेगुलेशन क्या बोलता है. तो हमें जल्दी इसको पकड़ना ज़्यादा कठिन नहीं होगा क्योंकि इसके रेगुलेशन नंबर सेम होंगे, हाँ, और हार्डली कुछ ही रेगुलेशंस आएंगे. तो मैं जिसका देखती जाती हूँ, रेगुलेशन 31 होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न. हाँ, सिर्फ मैं इस पर हेडिंग पढ़ूंगी. यू हैव टू गेट इन टू इट बाई योर सेल्फ, taking into account what is written. It is similar to what we have read for normal listing of equity shares in the main board. Fine. ये small and medium enterprises के लिए regulation number अलग है, और dates जो reporting की dates होंगी उनमें कुछ relaxations मिले होंगे. तो रेगुलेशन 31 होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ एंड शेयर होल्डर पैटर्न, वहाँ पे भी हमने बहुत पढ़ा था. इसके तो हमने सब सेक्शंस भी पढ़े थे, सब से रेगुलेशंस भी पढ़े थे, ठीक है. ABCD एंड ऑल. Fine. The listed entity which have listed their specified security as SME exchange shall submit to the stock exchange a statement showing holding of securities and shareholding patterns separately for each class of security in the format specified by SEBI from time to time on half yearly basis within 21 days from the end of each half yearly. Good, you have to remember this, you have to learn it. Now, regulation 32, statement of deviation. See, regulation name and number hasn't changed, only what has changed is the time criteria. Fine. So, regulation 33, financial results, again you need to go through. Rather, we should jump in directly to this table whereby compliance calendar has been made, and you can see what all the requirements are. Like 13, regulation 13 की बताओ. अच्छा, बिना देखे बताने की कोशिश कर रहे हो. 13 अब याद रहना चाहिए, grievance redressal mechanism, या तो ये क्वार्टरली इसको देना है, अपना कंप्लाइंस करना है. 76 ऑफ सेबी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये थोड़ा न्यू आया, इसको क्वार्टरली देना है. फिर ऊपर जो हम पढ़ के आए 31 शेयर होल्डिंग पैटर्न, ऊपर हमने पढ़ा हाफ ईयरली देना है. 32 स्टेटमेंट्स ऑफ डिविएशन, वो भी ऊपर पढ़ के आए, हाफ ईयरली देना है. 33 जो हमने छोड़ के फिर हमने सोचा टेबल से देखते हैं, हाफ ईयरली. 7 कंप्लाइंस ऑफ सर्टिफिकेट टू द एक्सचेंज, हाफ ईयरली. 40 कंप्लाइंस सर्टिफिकेट ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ट्रांसपोजिशन, हाफ ईयरली. एनुअल बेसिस में 2 हैं. रेगुलेशन 14 दैट इज लिस्टिंग फीस एनुअली. 34 है एनुअली. देन इवेंट बेस्ड सेम है, ठीक है, जो उसमें थे. बट 7 of 5 इंटीमेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट, इवेंट बेस्ड 7 days फ्रॉम द डेट. Guys, go through it, learn it, because me reading it will make no sense. I'll be just reading it for the sake of reading. Similar is non convertible debentures. अब इसमें ना थोड़े से
अभी तक हमने 48th रेगुलेशन 47 रेगुलेशन रादर तक छोड़ा था, जिसमें हमने एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड देखा था। अब यहाँ से थोड़े नए रेगुलेशन आएंगे, रादर 48 भी देखा था हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, या 48 तक देखा था। अब यहाँ पे 50 रेगुलेशन आया, इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते किस चीज़ से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं इसमें। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट येस इट्स पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल एंड यू शुड ट्राई नॉट टू इवन स्किप अ सिंगल पेज ऑफ योर मॉड्यूल, फाइन। तो इसमें हम देखते हैं कि पहली बात तो ये नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या है, कहाँ से डील हो रहा है। तो सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन 2015 शैल अप्लाई ओनली टू, किसको अप्लाई होगा, लिस्टिंग रेगुलेशन किसको अप्लाई होंगे, लिस्टेड एंटिटी को, हमने जिसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी और जिसकी डेफिनेशन में ये दो कवर हुए थे, एप्लीकेबिलिटी वाला पेज याद करिए, ठीक है, वो मल्टीपल एरोज कमिंग आउटसाइड एंड यू माइट बी रीडिंग एनसीडी, एनसीआरपी, तो दिस इज इट। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी है लिस्टेड एंटिटी पे विच हैज़ लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑन अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड बाय द बैंक, लिस्टेड बाय बैंक। Regulation 50 intimation to stock exchange. Prior intimation 7 working days से पहले before the date on which interest and or redemption amount shall be payable. See here you have something different to see because यहाँ पे ना जो हमने दो पार्ट में पढ़ा कि परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स भी कवर्ड हैं और इसमें नॉन कन्वर्टेबल डेट्स टाइप के भी इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड है, तो इधर पे ना इंटरेस्ट वाली बातें आ सकती हैं, रिडेम्पशंस वाली बात आ सकती है, जैसे इधर पे प्रायर इंटीमेशन उनसे रिलेटेड आया। इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, इट्स इंटेंशन टू रेज फंड थ्रू NCDs, NCRPs, it's all like you need to just go through it, it's just read it, fine. Then 51 regulation 51, disclosure of information having bearing on performance, not so important but this NCDRs is not so important, but क्योंकि ये दो रेगुलेशन रिपीटेटिव नहीं है 50 और 51, तो आप ये दोनों रीड कर सकते हो। ये रेगुलेशंस उसमें मतलब अपने जो नॉर्मल मेन बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, बट अगर आप एक और इसके ये शेड्यूल 3B बहुत ही लाइक जस्ट रीड थ्रू इफ यू डोंट वांट टू, आई वोंट बी टेलिंग, बट ओके। रेगुलेशन 52 फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमने पढ़ा था, तो इधर पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स का कौन सा रेगुलेशन था वहाँ पे गाइस मेन बोर्ड में, रेगुलेशन 33, राइट। तो 52 यहाँ पे अलग से इस NCDs और NCRPs के लिए, तो यू कैन रीड दिस ऑल्सो। सो समवट एसेट्स कवर्स, इसमें ना सारे न्यू रेगुलेशन है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट बहुत सारे इसके खुद के ही रेगुलेशन हैं। See, when you'll be reading it, you'll find that should I cover it, guys? Should I read them along with you people? This is a separate topic that I'll read. This I'll read rather. Recognition to company secretary, क्योंकि this is important. Fine. This is what regulation recognition to company secretary under SEBI listing regulation. तो company secretary को कैसे recognition दिया इस listing LODR regulation ने? इसने कैसे recognition दिया कि SEBI has recognized significant role played by company secretary as governance professional. यानी वो कह रहा है कि आप कौन हो, आप और हम कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, गवर्नेंस प्रोफेशनल्स हैं, किसके अंदर, अंडर सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन, एंड रिकग्नाइज द रोल टू बी प्लेड बाय कंपनी सेक्रेटरी अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन 2015 एज डिस्कस्ड बिलो। तो आपके ना वेरियस रोल्स हैं जो आप प्ले कर रहे हो हर रेगुलेशन में। अब वो एक एक रेगुलेशन वाइज आपको आपका रोल बता रहे हैं, तो आपको ना ये सुन के थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी रेगुलेशन देख चुके हो एंड दिस विल बी सॉर्ट ऑफ रिविजन ऑफ रेगुलेशंस फॉर यू, फाइन। तो अब रेगुलेशन 6 आप इसमें तो आपका नाम ही आ गया था कंप्लायंस ऑफिसर के नाम पे, है ना, तो कंप्लायंस ऑफिसर के ऑब्लिगेशंस की बात करता था ये। तो प्रोवाइड दैट लिस्टेड एंटिटी शैल प्रोवाइड अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, फाइन। अब रेगुलेशन 7 शेयर ट्रांसफर एजेंट की बात करता था, पर फिर रिक्वायर्स दैट लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू द एक्सचेंज
फाइन, आपको एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट देना एक्सचेंज का, ड्यूली साइंड बाय बोथ द कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर ट्रांसफर एजेंट वेयर एवर एप्लीकेबल विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो आपको सर्टिफिकेट इशू करने की बात थी ना, तो उसमें उन्होंने देखा कि कंप्लाइंस ऑफिसर का सर्टिफिकेट देना है। रेगुलेशन 16 जहाँ आपने सीनियर मैनेजमेंट के बारे में देखा था, तो वो बोल रहा था कि सीनियर मैनेजमेंट मीन्स कुछ भी, मतलब ठीक है सीनियर मैनेजमेंट कुछ भी नहीं बोल रहे हो, सीनियर मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, सीनियर मैनेजमेंट मीन्स नॉट बिलो अ पर्सन, ऑल द मेंबर्स कंप्राइजेज ऑफ मैनेजमेंट 1 level below chief executive officers, managing directors, whole time directors, managers including CEOs and managers। तो इनसे जो एक लेवल बिलो है ना, उनको सीनियर मैनेजमेंट में काउंट किया गया था। तो उससे रिगार्डिंग में हमने देखा, तो इसमें हमारा नाम भी है and shall specifically include company secretary and chief financial officer। यानी CS कौन है, सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट अंडर रेगुलेशन 16 काउंट होता है। रेगुलेशन 24A जहाँ पे वो मैंडेट करता है कि सारी लिस्टेड कंपनी एंटिटीज़ को मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडरटेक सेक्रेटेरियल ऑडिट। ठीक है, अगर आपका जो लिस्टेड एंटिटी है और उसकी कोई मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, तो रेगुलेशन 24A के तहत, 24A हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि हम 18th के बाद 15th के बाद डायरेक्टली 28 में आ गए थे। तो उसके बीच में ये जो हैं ये रेगुलेशंस, इनका रेफरेंस ज़रूर दिया गया था, तो दैट यू कैन सी ओके। बट अब हमको ये तो समझ में आ गया कि ये सेक्रेटेरियल ऑडिट से रिलेटेड है 24A, है ना। तो यहाँ पे उसमें यही बात की गई है कि जो भी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज है उनको सेक्रेटेरियल ऑडिट लेना पड़ेगा। फिर रेगुलेशन 40 की बात की थी, ये तो पढ़ा था हमने, ट्रांसफ़र एजेंट्स, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स और ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ in case should produce the certificate from practicing company secretary within 1 month, certifying that have been issued within 30 days। okay, ये भी हम पढ़ चुके हैं यार। रेगुलेशन 56 ये हमने थोड़े स्किप किए हुए थे NCDRs और NCDs के अंदर, NCDRPs और NCDs के अंदर, तो आप एक बार देख लीजिएगा। so guys, this is end of chapter 13। it was a lengthy chapter, no doubt, but yes, it is a very important chapter that you people can score good in। and so I am done here। I'll be coming up with the listing of international वाला जो part है आपका, international listing वाला, that I'll make a separate video। sorry, the video is becoming very lengthy, but yes, I have tried कि I cover only okay। before we conclude, let me just tell you the important regulations, just mark the important regulations which you should remember, right? I told you, no, at the end I'll tell you, start marking, fine, I'm telling you, you just keep marking। starting from regulation 4, ठीक है, 4 was important, disclosures, less you have to learn entire regulation 4 on the basis of all principles। then you had regulation 5, yes, important, market important, learn। then regulation 6, regulation 7, share transfer agent, regulation 9, preservation of documents, regulation 10, filing of information, regulation 12, payment of dividend or interest on redemption of payment, regulation 13, grievance redressal mechanism, then regulation 28, in principle approval of recognized stock exchange, regulation 29, prior intimation of the board, then under regulation 30 that we have already marked I guess while studying, schedule 3 part A, बहुत important है वो तो, ठीक है, मटीरियलिटी बताता है क्या मटीरियल क्या नहीं। फिर कमिंग टू 31, आई गेस 31A सब रेगुलेशन 3 is important, whereby 3 and 4 because both were dealing for promoters being reclassified as public, fine। तो वो रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। फिर बाकी तो आप रीड कर सकते हैं, इट्स अ रीड बेस्ड। फिर एक और था रेगुलेशन 38, मिनिमम शेयर होल्डिंग, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पर, उसमें कुछ मैटर ज़्यादा नहीं था, दैट्स इंपॉर्टेंट रेगुलेशन बट मैटर वॉज नॉट इनफ, फाइन। देन रेगुलेशन 42,
very important. Record date, date of disclosures of transfer. Regulation 43A, DDP, important. 45, change of name, important. That's it, guys. Fine, this is it. Thanks for hearing me, and hope this lecture remains fruitful for you people.